Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to lecture 15 of industrial pharmacy. In this lecture we will continue our discussion on the topic of mixing. In previous class we left our discussion on the approaches to minimize segregation, in which we have learned a technique by which segregation can be minimized, that is by using an ordered mix. So let's continue our discussion on ordered mixing. What is ordered mixing and how it can actually minimize segregation? It would be expected that a mix composed of very small and much larger particles would segregate because of the size differences. Sometimes, however, if one powder is sufficiently small or micronized, it may become adsorbed onto active sites on the surface of a larger carrier particle and exhibit a greater resistance to being dislodged. This has the effect of minimizing segregation while maintaining good flow properties. It was first noticed by Travers and White in 1971 during the mixing of micronized sodium bicarbonate with sucrose crystals, when the mixture was found to exhibit minimal segregation. The phenomena is referred to as ordered mixing, as the particles are not independent of each other and there is a degree of order to the mix. If a carrier particle is removed, then some of the adsorbed smaller particles will automatically be removed with it. Ordered mixing has also been used in the production of dry antibiotic formulations, to which water is added before use to form a liquid or syrup product. In these cases, the antibiotic is fine powder form is blended with and adsorbed onto the surface of larger sucrose or sorbitol particles. Ordered mixing probably occurs to a certain extent in every pharmaceutical powder mix due to interactions and cohesive or adhesive forces between constituents. It is therefore most likely to occur when smaller particles exist, as these have a high specific surface area and thus the attractive forces holding the particles to the adsorption site are more likely to be greater than the gravitational forces trying to separate the components. Pharmaceutical powder mixes are therefore likely to be partly ordered and partly random, the extent of each depending on the component properties. With an ordered mix, it may be possible to achieve a degree of mixing which is superior to that of a random mix, which may be beneficial for potent drugs. Ordered mixing has been shown to be important in direct compression tablet formulations in preventing segregation of the drug from direct compression bases. Dry powder inhaler formulations also utilize ordered mixing to deliver drugs to the lungs. In this case, the drug needs to be in a micronized form in order to reach its site of action. By adsorbing the drug onto larger carrier particles, usually lactose, it is possible to manufacture a product which will provide an even dosage on each inhalation. एक मिक्स जिसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल या लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, उसमें सेग्रीगेशन के चांसेस साइज डिफरेंसेस की वजह से ज़्यादा होते हैं. सम टाइम अगर एक पाउडर है जो सफिशेंटली स्मॉल या माइक्रोनाइज्ड है, तो वो एड्सॉर्ब हो जाता है एक्टिव साइट्स के ऊपर ऑन लार्जर कैरियर पार्टिकल्स, जो एक्चुअली एक ग्रेटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं डिसलॉज होने के अगेंस्ट. इस इफेक्ट की वजह से सेग्रीगेशन मिनिमाइज होती है, जबकि गुड फ्लो प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रहती हैं. ट्रैवर्स और वाइट ने ये ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ माइक्रोनाइज्ड सोडियम बाइकार्बोनेट विद सुक्रोज क्रिस्टल, जहाँ पर मिक्सचर में मिनिमल सेग्रीगेशन ऑब्जर्व की गई थी एड्सॉर्प्शन की वजह से. इस
फिनोमेना को ऑर्डर्ड मिक्सिंग कहते हैं, जिसमें पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे के और के साथ, और डिग्री ऑफ ऑर्डर मिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर एक कैरियर पार्टिकल को रिमूव किया जाए तो एड्सॉर्ब्ड स्मॉलर पार्टिकल्स भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। ऑर्डर्ड मिक्सिंग ड्राई एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशन की प्रोडक्शंस में यूज़ होती है, जहां पर वाटर ऐड किया जाता है जस्ट बिफोर यूज़, ताकि एक लिक्विड या सिरप प्रोडक्ट फॉर्मुलेट की जा सके। इन केसेस में एंटीबायोटिक्स फाइन पाउडर फॉर्म के अंदर ब्लेंड की जाती हैं और एड्सॉर्ब की जाती हैं लार्जर सुक्रोज या फिर सॉर्बिटोल पार्टिकल्स के ऊपर। ऑर्डर्ड मिक्सिंग ऑलमोस्ट अकर होती है टू सर्टेन एक्सटेंट हर फार्मास्यूटिकल पाउडर मिक्स में। इंटरैक्शंस की वजह से या कोहेसिव या एडेसिव फोर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं उनकी वजह से, और ये ज़्यादा लाइकली अकर होती है जब स्मॉलर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल्स के पास हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है। इसी वजह से अट्रैक्टिव बॉन्डिंग फोर्सेस पार्टिकल्स की एड्सॉर्प्शन साइट के ऊपर ज़्यादा होती हैं, जो कि लाइकली बॉन्ड करती हैं टू दी एड्सॉर्प्शन साइट, और वो मोस्टली ग्रेटर होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के, जो कि सेपरेट आउट कर रही होती हैं पाउडर कंपोनेंट्स को। फार्मास्यूटिकल पाउडर मिक्सेस पार्टली ऑर्डर्ड होते हैं और पार्टली रैंडम होते हैं, और किस एक्सटेंट के ऊपर ऑर्डर्ड और किस एक्सटेंट के ऊपर रैंडम होंगे ये डिपेंड करेगा कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ऑर्डर्ड मिक्स में ये पॉसिबल है कि एक डिग्री ऑफ मिक्सिंग अचीव की जा सके जो कि सुपीरियर होती है रैंडम मिक्स से, और मोस्टली ये बेनिफिशियल होती है पोटेंट ड्रग सब्सटेंसेस में। ऑर्डर्ड मिक्सिंग एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए टैबलेट फॉर्मुलेशंस की, जिसमें सेग्रीगेशन ऑफ पाउडर को प्रिवेंट किया जाता है डायरेक्ट कंप्रेशन बेसिस में। ड्राई पाउडर इनहेलर फॉर्मुलेशन में भी ऑर्डर मिक्सिंग को यूटिलाइज किया जाता है ताकि ड्रग्स को डिलीवर किया जा सके लंग्स में। इस केस के अंदर ड्रग्स को माइक्रोनाइज फॉर्म के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और उसे एब्जॉर्ब करवाया जाता है कैरियर पार्टिकल्स के ऊपर, ताकि वो इजीली रीच हो सके टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। Still, segregation exists in ordered mixes as well. Although ordered mixes can reduce or prevent segregation, it may still occur if, for example, the carrier particles vary in size. Different sized particles will have different surface area to weight ratio and will contain different amounts of adsorbed materials per unit mass. If the different sized carrier particles separate, for example by percolation segregation, drug-rich areas where the smaller carrier particles congregate may result. This is referred to as ordered unit segregation. There is a competition for the active site on the carrier particle. If another component competes for sites on the carrier, it may displace the original adsorbed material, which may then segregate due to its small size. This is known as displacement segregation and has been shown to occur under certain circumstances with the addition of the lubricant magnesium stearate to tablet formulations. There are sufficient carrier particles. Each carrier particle can only accommodate a certain amount of adsorbed material on its side. If there is any excess small size material that is not adsorbed onto the carrier particle, this may quickly separate. This is referred to as saturation segregation. And may limit the proportion of the active components that can be used in the formulation. Within ordered mix, particles may be dislodged if the mix is subjected to excessive vibration. The extent to which this occurs depends on the forces of attraction between the components and therefore on how tightly the adsorbed particles are attached to the surface. The orientation of the particles is also important. Particles protruding out from the surface being more likely to be dislodged than those lying parallel to the surface.
ऑर्डर्ड मिक्सेस सेचुरेशन को प्रिवेंट करते हैं लेकिन स्टिल सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन स्टिल सेग्रीगेशन अकर हो सकती है। जैसे कि अगर कैरियर पार्टिकल्स में साइज वेरिएशंस हैं, तो अगर डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं एक मिक्स में, कैरियर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर उनका डिफरेंट सरफेस एरिया टू वेट रेशो होता है, जो एक्चुअली डिफरेंट अमाउंट रखता है एड्जॉर्ब मटेरियल की पर यूनिट मास। अगर ये डिफरेंट साइज पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएं, फॉर एग्जांपल बाय परकोलेशन सेग्रीगेशन, तो ड्रग रिच एरियाज जहाँ पर स्मॉलर कैरियर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्ग्रीगेट करते हैं, और ये रेफर किया जाता है ऑर्डर्ड यूनिट सेग्रीगेशन के तौर पे। एक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है एक्टिव साइट्स के लिए कैरियर पार्टिकल के ऊपर। अगर एक कंपोनेंट compete करता है साइट के लिए कैरियर के ऊपर, तो वो डिस्प्लेस कर सकता है ओरिजिनल एड्जॉर्ब मटेरियल को, जो एक्चुअली सेग्रीगेट होगा ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। इस मैकेनिज्म को हम डिस्प्लेसमेंट सेग्रीगेशन कहते हैं, और ये मोस्टली उस वक्त अकर होता है या उन कंडीशंस में अकर होता है जहाँ पर एडिशन ऑफ लुब्रिकेंट होती है, लाइक मैग्नीशियम स्टीरेट टैबलेट फॉर्मुलेशन में। सफिशिएंट या इनसफिशिएंट कैरियर पार्टिकल्स होने की वजह से भी सेग्रीगेशन हो सकती है। अगर एक कैरियर पार्टिकल अकोमोडेट करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब मटेरियल को उसकी अपनी सरफेस के ऊपर, और एक्सेस में स्मॉल साइज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो सारे स्मॉल साइज पार्टिकल्स एड्जॉर्ब नहीं होंगे कैरियर पार्टिकल्स में, और वो क्विकली सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह की सेग्रीगेशन को हम सैचुरेशन सेग्रीगेशन कहते हैं, और ये लिमिट करती है एक्टिव कंपोनेंट्स के प्रोपोर्शन को जो कि फॉर्मुलेशन में यूज़ हो रहे होते हैं। ऑर्डर्ड मिक्स के साथ पार्टिकल्स को डिसलॉज किया जा सकता है अगर मिक्स को हम एक्सेसिव वाइब्रेशन से गुजारें। किस एक्सटेंट तक ये अकर होगा वो डिपेंड करेगा वाइब्रेशनल फोर्सेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जो कि कंपोनेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से जितने टाइटली एड्जॉर्ब पार्टिकल्स अटैच्ड होंगे सरफेस के साथ, वो सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करेंगे। ओरिएंटेशन पार्टिकल्स की इम्पॉर्टेंट है। पार्टिकल्स जो कि प्रोट्रूड करते हैं सरफेस के ऊपर, वो ज़्यादा जल्दी डिसलॉज हो सकते हैं कंपेयर टू दोज पार्टिकल्स जो कि पैरेलल लाई करते हैं सरफेस पे। Now move on to the next topic, that is mixing of powders. While we study mixing of powders, we need to study the practical considerations while mixing powders. When mixing formulations in which there is a relatively low proportion of active ingredients or more even distribution may be obtained by sequentially building up the amounts of material in the mixer. This may be achieved by initial mixing in the active components with an approximately equal volume of the diluents. Further amounts of diluents equal to the amount of material in the mixer can then be added and mixed, the process being continued until all materials has been added. It may be more appropriate to pre-blend the active components with the diluent in a smaller mixer prior to transferring it to the main mixer in cases where the amount of active ingredient is very low. Care must be taken to ensure that the volume of the powder in the mixer is appropriate, as both over and under filling may significantly reduce mixing efficiency. In case of overfilling, for example, sufficient bed dilation may not take place for diffusive mixing to occur to the required extent, or the material may not be able to flow in a way that enables shear mixing to occur satisfactorily. Underfilling may mean the powder bed does not move in the required manner in the mixer, or that an increased number of mixing operations may be needed for a batch of material. जब रिलेटिवली लो प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फॉर्मुलेशन में मिक्स किए जाते हैं, तो एक ज़्यादा इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करना होती है, ताकि
ताकि अमाउंट ऑफ मटेरियल को मिक्सर के अंदर सीक्वेंशली बिल्डअप किया जा सके। इसको अचीव करने के लिए इनिशियल मिक्सिंग की जाती है एक्टिव कंपोनेंट्स की अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट्स के साथ। फर्दर अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि जो इक्वल टू अमाउंट ऑफ मटेरियल होते हैं इन द मिक्सर, और प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है अनटिल तमाम मटेरियल ऐड हो जाए मिक्सर के अंदर। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है टू प्री ब्लेंड एक्टिव कंपोनेंट्स विद अ डाइल्यूएंट एक स्मॉलर मिक्सर में प्रायर टू ट्रांसफरिंग इट टू द मेन मिक्सर, उन केसेस में जहाँ पर अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इज़ वेरी लो। इस सारे प्रोसेस के अंदर ये इंश्योर करना होता है कि वॉल्यूम पाउडर का जो मिक्सर के अंदर है वो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ओवर और अंडर फिलिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है मिक्सिंग एफिशिएंसी को। अगर ओवर फिलिंग होती है, फॉर एग्जांपल सफिशिएंट बेड डायलेशन नहीं हो पा रही डिफ्यूजिव मिक्सिंग के लिए रिक्वायर्ड एक्सटेंट तक, तो मटेरियल की फ्लोएबिलिटी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि वो शेयर मिक्सिंग को सेटिस्फैक्ट्रीली अचीव नहीं कर पाती। अगर अंडर फिलिंग है तो इसका मतलब ये है कि पाउडर बेड मूव नहीं कर रहा एक रिक्वायर्ड मैनर में मिक्सर के अंदर। मिक्सिंग ऑपरेशंस जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाते हैं और बैच मटेरियल मिक्सिंग ऑपरेशंस में नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑपरेशंस में से गुजरता है। Mixers used should produce the mixing mechanism appropriate for the formulation. For example, diffusive mixing is generally preferable if potent drugs are to be mixed, and high shear is needed to break up aggregates of cohered materials and ensure mixing at a particular level. जो मिक्सर्स यूज़ किए जाते हैं वो इस तरह से चूज़ किए जाते हैं कि मिक्सिंग मेकैनिज़म अप्रोप्रिएट प्रोड्यूस कर सकें फॉर्मुलेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिफ्यूजिव मिक्सिंग प्रेफरेबल है, पोटेंट ड्रग्स और पोटेंट ड्रग्स को मिक्स करना है, तो हाई शेयर मिक्सर नीडेड होता है ताकि वह एग्रीगेट्स को ब्रेक कर सके कोहेड मटेरियल के और इंश्योर करवा सके कि मिक्सिंग पार्टिकुलेट लेवल के ऊपर अचीव हो रही है। Impact or attrition forces generated if too high shear forces are used may however damage fragile materials and thus produce fines. The mixer design should be such that it is dust tight, it can be easily cleaned and the product can be fully discharged. These features reduces the risk of cross contamination between batches and protect the operator from the product. In order to determine the appropriate mixing time, the process should be checked by removing and analyzing representative samples after different mixing intervals. This may also indicate if segregation is occurring within the mixer and whether problems could occur if the mixing time is extended. When particles rub past each other as they move within the mixer, static charges will be produced. These tends to result in clumping and a reduction in diffusive mixing and cause materials to adhere to the machine or container surfaces. To avoid this, mixers should be suitably earthed or to dissipate these static charges, and the process should be carried out at a relative humidity greater, although not excessively, than approximately 40%. इम्पैक्ट और एट्रीशन फोर्सेस अगर जनरेट हों और बहुत ज़्यादा जनरेट हों तो शेयर फोर्सेस यूज़ की जाती हैं जो एक्चुअली डैमेज कर सकती हैं हाई फ्रेजाइल मटेरियल्स को और फाइंस प्रोड्यूस करती हैं। मिक्सर डिज़ाइन इस तरह का होता है कि उसमें डस्ट टाइट रह सके, यानी इट कैन बी ईजीली क्लीन्ड और जो प्रोडक्ट है
फॉर्म हो, मिक्स होने के बाद वो इजीली डिस्चार्ज हो सके या फुली डिस्चार्ज हो सके। ये फीचर्स रिड्यूस करते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन के रिस्क को जो बिटवीन बैचेस अकर हो सकती है, और ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट से। अप्रोप्रिएट मिक्सिंग टाइम डिटरमाइन करने के लिए प्रोसेस को चेक किया जाता है बाय रिमूविंग एंड एनालाइजिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, जो कि डिफरेंट मिक्सिंग इंटरवल्स के ऊपर अचीव किया जाता है। ये इंडिकेट करता है अगर सेग्रीगेशन अकर हो रही है मिक्सर में तो वो प्रॉब्लम्स कॉज कराएगी मिक्सिंग में टाइम में, या मिक्सिंग टाइम को एक्सटेंड करना पड़ेगा या रिड्यूस करना पड़ेगा। पार्टिकल्स अगर रपास हो एक दूसरे के ऊपर तो वो मूव करते हैं विद इन द मिक्सर, और जिसकी वजह से स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ये क्लम्पिंग करवाता है और रिडक्शन करवाता है मैकेनिज्म डिफ्यूजिव मिक्सिंग में, और मटेरियल्स एडहेयर होते हैं मशीन के ऊपर या फिर कंटेनर सरफेसेस के ऊपर। इसको प्रिवेंट करने के लिए मिक्सर्स को सूटेबली अर्थ करना पड़ता है ताकि वो डेसिपेट कर सके स्टैटिक चार्जेस को और प्रोसेस को कैरी आउट कर सके एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर जो कि मोस्टली ग्रेटर देन होती है अप्रॉक्सीमेटली 40%। Our next topic is powder mixing equipments. In this we will be discussing a number of equipments that are used for mixing of powders. The first mixer that we are going to discuss today is tumbling mixers or blenders. Tumbling mixers are commonly used for mixing or blending granules or free flowing powders. There are many different designs of tumbling mixers, for example double cone mixer, twin shell or V mixer, cube, Y-cone and drum mixers, some of which are shown over here. It is now common to use the intermediate bulk containers as the both mixer bowl and the either and to either feed the hopper of a tablet or a capsule machine or act as a hopper itself. The shape of an IBC used for this purpose is illustrated over here. It can be seen over here. A mixer, an intermediate bulk container which is used for mixing, and it can be converted into a hopper. Mixing containers are generally mounted as that they can be rotated about in excess. When operated at a correct speed, the tumbling action is achieved, which is shown over here in this diagram. Shear mixing will occur as a velocity gradient is produced, the top layer moving with the greatest velocity and the velocity decreasing as the distance from the surface increases. When the bed tumbles, it dilates, allowing the particles to move downwards under gravitational forces, and so diffusive mixing occurs. Most mixing will occur towards the surface of the bed, where the velocity gradients are highest and the bed is almost dilated. Too high a rotation speed will cause the material to be held on the mixer walls by centrifugal forces, and too low a speed will generate insufficient bed expansion and little shear mixing. Addition of prongs or baffles or rotating bars will also cause convective mixing, for example the V mixer with an agitator bar. Tumbling mixers are available to mix from approximately 50 gram, for example for laboratory scale development work, to over 100 kg at a production scale. The material typically occupies approximately a half or 2/3 of the mixer volume. The rate at which the product is mixed will depend on the mixer geometry and rotation speed because they influence the movement of the material in the mixer.
Tumbling mixers are good for free-flowing powders, granules, but are less effective for cohesive or poorly flowing powders because the shear forces generated are usually insufficient to break up any aggregates. Care also needs to be taken if there are significant differences in particle size, as segregation is likely to occur. Common use of tumbling mixers is in the blending of lubricants, glidants or external disintegrants with granules prior to tableting. Tumbling mixers can also be used to produce ordered mixes, although the process is often slow because of the cohesiveness of the adsorbing particles. Tumbling mixers commonly फ्री फ्लोइंग पाउडर्स की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होते हैं, या ग्रैन्यूल्स की मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होते हैं. इसके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, लाइक डबल कोन मिक्सर है, ट्विन शेल मिक्सर है, डबल कोन मिक्सर है, ट्विन शेल या वी मिक्सर है, क्यूब या रोटेटिंग क्यूब मिक्सर होता है, वाई कोन मिक्सर होता है, ड्रम मिक्सर्स होते हैं, ऑब्लिक कोन मिक्सर्स होते हैं. आजकल ये कॉमन है कि हम इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर यूज़ करते हैं जो कि मिक्सर बाउल का भी काम करते हैं और हॉपर का भी काम करते हैं टैबलेट या कैप्सूल मशीन्स के ऊपर. ये शेप जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर या IBC की शेप है. मिक्सिंग कंटेनर्स जनरली माउंटेड होते हैं ताकि ये इजीली रोटेट किए जा सकें एक एक्सेस के अराउंड. जब इनको ऑपरेट किया जाता है करेक्ट स्पीड में तो टम्बलिंग एक्शन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, मिक्सिंग जोन और सर्कुलेशन पाथ. शेयर मिक्सिंग अकर होती है जैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, टॉप लेयर मूव करती है ग्रेटेस्ट वेलोसिटी के साथ और वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे डिस्टेंस सरफेस से डिक्रीज होता जाता है. यानी यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ वेलोसिटी कम है. जब बेड टम्बल करता है तो वो डायलेट होता है और डायलेशन की वजह से वो ये अलाउ करता है कि पार्टिकल्स को अलाउ करता है कि वो डाउनवर्ड मूव करें अंडर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ताकि डिफ्यूजिव मिक्सिंग हो सके. मोस्टली जो मिक्सिंग अकर होती है वो टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ बेड अकर होती है जहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट हाईएस्ट होता है और बेड मोस्ट डायलेटेड होता है. अगर बहुत ज़्यादा रोटेशन स्पीड है तो वो मटेरियल को हेल्ड करती है ऑन द मिक्सर वॉल्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अगर बहुत कम रोटेशन स्पीड है तो वो इनसफिशिएंट बेड एक्सपेंशन जनरेट करती है जिसकी वजह से शेयरिंग मिक्सिंग रिड्यूस हो जाती है. अगर प्रॉन्ग्स ऐड कर दिए जाएं या बैफल्स ऐड कर दी जाएं या फिर रोटेटिंग बार्स ऐड कर दी जाएं जैसा कि यहाँ पर वी शेप मिक्सर के अंदर एडेड नज़र आ रही हैं, तो ये कन्वेक्टिव मिक्सिंग कॉज करवाती हैं. टम्बलिंग मिक्सर्स मोस्टली अवेलेबल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम साइज़ के अंदर लेबॉरेटरी स्केल में प्रोडक्शन के लिए, और 100 ग्राम या ओवर 100 ग्राम साइज़ में अवेलेबल होते हैं फॉर प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल स्केल. मटेरियल जो टिपिकली टम्बलिंग मिक्सर में स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो हाफ या 2/3 होती है मिक्सर वॉल्यूम की, और जिस रेट के ऊपर प्रोडक्ट मिक्स की जाती है वो डिपेंड करता है मिक्सर की ज्योमेट्री के ऊपर और उसकी रोटेशन स्पीड के ऊपर, बिकॉज ज्योमेट्री और रोटेशन स्पीड दोनों इन्फ्लुएंस करती हैं मटेरियल की मूवमेंट को मिक्सर में. टम्बलिंग मिक्सर्स यूज़ किए जाते हैं फ्री फ्लोइंग पाउडर्स या ग्रैन्यूल्स के लिए, और ये ज़्यादा इफेक्टिव समझे जाते हैं फ्री फ्लोइंग पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स के लिए, लेकिन ये लेस इफेक्टिव समझे जाते हैं ऐसे पाउडर्स के लिए जो कोहेसिव इन नेचर होते हैं या पुअरली फ्लोइंग पाउडर्स होते हैं, क्योंकि कोहेसिव इन नेचर पाउडर्स या पुअरली फ्लोइंग पाउडर्स में शेयर फोर्सेस जनरेट होती हैं जो यूजुअली इतनी कम होती हैं कि वो एग्रीगेट्स को ब्रेक कर सकें. सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस पार्टिकल साइज में अवॉइड किए जाते हैं ताकि सेग्रीगेशन को प्रिवेंट किया जा सके. एक कॉमन यूज टम्बलिंग मिक्सर का ल्यूब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स या एक्सटर्नल डिसइंटीग्रेंट्स की ब्लेंडिंग है ग्रैन्यूल्स में बिफोर टैबलेटिंग. टम्बलिंग मिक्सर्स को हम ऑर्डर्ड मिक्सिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस मोस्टली स्लो होता है क्योंकि कोहेसिवनेस एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है ऑर्डर्ड मिक्सिंग में.
That's the end of this lecture. In next lecture we will be discussing high speed mixer and other types of mixers which are used for powder mixing. If you have any question, you can post it on HULMS. Thank you for listening to this lecture. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.